In last class, we complete the basic concepts of basis and dimension. Nothing else, right? Today we analyze the dimension of some vector spaces of different types and also analyze how many bases in different type of vector space, right? So dimension analysis. So generally, if we have a vector space like Fn over F, what is the dimension of this vector space? F any field that must be equal to n, right? Similarly, if dimension of some vector space which is over F, that is n, then if and also cardinality of field is p to power k, then cardinality of that vector space is p to power nk, right? Next, if some set S in which elements x1, x2 and so on x are such that r is less than equal to n. So S is Li or Ld? S is Li or Ld? Voice is clear or not? वॉइस आ रहा है सभी को? Okay. Then n is the dimension of some vector space and S is subset of any vector space and the cardinality of S is less than is equal to R. Then S must be Li, right? Li होगा या नहीं होगा? And cardinality of Ls that equal to some p to power Rk. ये clear है ना सभी को? Next, if we have a vector space which dimension is n and some field some p to power k cardinality, so we know this implies that cardinality of b is p to power nk. Now we let some set as which have elements some like x1, x2 and so on up to xn. So S is a basis or not? We consider S must be Li. So how many S is possible? How many S is possible in the vector space V? Such type of subsets S belongs to V and S is Li. How many Li sets possible? P to power nk, exactly. P to power nk is the dimension. We have a vector. You know how many subsets possible of any set?
how many subsets? Like we have a set S which cardinality is something n, then how many subsets? 2 to power n, right? So if we think about how many subsets, S is a subset of V. So Li and Ld all subsets is 2 to power p to power n k, right? But how many subsets are Li with cardinality n? That means how many bases are possible? बता सकते हैं? How many bases? नहीं, फॉर्मूला है यहाँ पर देखिएगा, we have x, sorry, we have n vectors in S, right? For first vector x1, we have how many choices? For x1, number of choices is equal to p to power nk, not n, any one choice, but non-zero, right? So we remove one, that is 0. So for x1 we have choices p to power nk minus 1 exactly. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Now for x2, how many number of choices? P to power nk minus p to power k. Okay. You have total choices for x2. Here x2 is not dependent on x1 because of S's basis. That means x2 is not linear combination of x1. So we remove all the possible linear combinations. So how many linear combination of x1? How many linear combination? Exactly p to power k. So we remove p to power k elements. So we have choices p to power nk minus p to power k. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? देखिए जैसे हमारे पास x1 के लिए देखिएगा पूरे फील्ड्स के लिए चॉइसेस हैं। यहाँ पर x1 के लिए तो फ्री है आप चॉइस के लिए, बट जीरो नहीं होना चाहिए, राइट? नॉन जीरो, नॉन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पर x1 मैंने चूज कर लिया, एक ही तो वेक्टर है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन ये बनाएंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए जो हमारे पास कॉफिशिएंट्स रहते हैं, जो भी a1 होगा, a1 कहाँ बिलोंग करेगा? फील्ड में होगा ना। तो a1 के पास चॉइसेस कितनी है? जितने फील्ड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। फील्ड में कितने एलिमेंट्स हैं? एग्जैक्टली p टू पावर k। तो वही हमने रिमूव की हुई। अब आते हैं सिमिलरली x3 के लिए चॉइसेस कितनी होंगी? p टू पावर nk माइनस p टू पावर 2k। क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पर रिमूव कितने होंगे? एक x1 और x2 के लीनियर कॉम्बिनेशन कितने होंगे? दोनों के लिए p टू पावर k चॉइसेस हैं, तो दोनों डिपेंडेंट होंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो p टू पावर k कितना हो जाएगा? 2k। तो इस तरह से सिमिलरली फॉर x n के लिए चॉइसेस कितनी होगी? बताइए। n माइनस 1k। क्लियर है?
यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब बताइए यहाँ पर कंस्ट्रक्ट एस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? नंबर ऑफ वेज टू कंस्ट्रक्ट सेट एस, दैट इज इक्वल टू, सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, एंड सो ऑन अप टू p टू पावर n k माइनस p टू पावर n माइनस 1 k अपॉन फैक्टोरियल n, राइट? यही होंगे। नंबर ऑफ चॉइसेस, यहाँ तक कोई डाउट है? तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आया, हाउ मेनी नंबर ऑफ बेसिस, कितनी होंगी नंबर ऑफ बेसिस? नंबर ऑफ बेसिस बताइए। प्रोडक्ट r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 एंड p टू पावर n k माइनस p टू पावर r k अपॉन फैक्टोरियल है, राइट? ये हमारे पास नंबर ऑफ टोटल बेसिस होंगी। किसी भी फील्ड यहाँ पर क्या होना चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए, राइट? एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस कितनी होंगी? यहाँ पर सभी पॉसिबिलिटीज, यानी कि यदि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनको अरेंज करने का क्या होगा? फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टोरियल का जो डिवाइड है वो रिमूव हो जाएगा। तो जो ऑर्डर्ड बेसिस होंगी दैट इज p टू पावर n के माइनस p टू पावर r के। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कि कितनी बेसिस होंगी? एग्जाम्पल, we have z3 over z3, how many bases? Has number of bases? बता सकते हैं? यहाँ पर n और k क्या है? दोनों 3 है ना? दोनों 3 है। हियर n बराबर k बराबर 3, तो नंबर ऑफ बेसेस दैट इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर? प्रोडक्ट r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 दैट मीन्स 2 एंड p टू पावर n की वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, केक नहीं यहाँ पर, सॉरी, जो मैंने r लिखा हूँ, हाँ, p टू पावर क्या आएगा? 9 माइनस, बट p क्या है यहाँ पर? p टू एक्चुअली यहाँ पर p टू पावर जो k है आपके पास वही 3 है ना। p टू पावर k क्या है? ये पूरा 3 है ना। क्लियर है?
तो ये क्या हो जाएगा, पी टू पावर के 3 है और पावर यहाँ पर n क्या है 3 है, माइनस पी टू पावर k क्या है 3 है, 3 टू पावर r हो जाएगा ना, अपॉन में फैक्टोरियल क्या आएगा 2। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए 3 टू पावर 3 यानी कि 9 माइनस पहले 0, सॉरी 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या आएगा न्यूमरेटर में 9 माइनस 1, 9 माइनस 3 एंड 9 माइनस 9 आएगा क्या, सॉरी दैट इज नॉट 9, 27 3 टू पावर 3, हाँ 27 माइनस 1, 27 माइनस 3, 27 माइनस 9 अपॉन 6, इनका प्रोडक्ट करिए क्या आएगा 26, 24 एंड 18, ये 6 से कट हो जाएगा 4 टाइम बाई 18, दैट इज 172। तो ये आएंगे हमारे पास नंबर ऑफ बेसिस आएंगे, क्लियर है ना। अभी तो फील्ड बहुत छोटा फील्ड है, कितनी बेसिस पॉसिबल होंगी, क्लियर है ना। अभी तो फील्ड एंड वेक्टर स्पेस 3 डायमेंशनल है, 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 मिनट, बेसिस यहाँ पर कि बेसिस की कार्डिनलिटी क्या होगी, इतनी तो नहीं आएंगी ना, बेसिस की कार्डिनलिटी क्या होगी बताइए। ये कैलकुलेट किया क्या, ये करेक्ट है, नहीं नहीं वो मल्टीप्लाई कर, वो तो ठीक है, कैलकुलेशन नहीं चेक कर रहा हूँ, करने को बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि Z3 ओवर Z3 है, इसकी बेसिस इतनी पॉसिबल होंगी, हाँ वही कह रहा हूँ ये पॉसिबल होंगी। या नहीं होंगी, नो आइडिया। ओके, यहाँ पर क्या है कि ये जो बेसिस है वो इसकी है, ठीक है ना, क्योंकि n की वैल्यू 1 होगी यदि ये 3 नहीं लिखा होगी ना, क्योंकि डायमेंशन क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी ना। या फिर आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं f3 ओवर f as number of bases where f is equal to z3, राइट, लिख सकते हैं। इसकी बेसिस होंगी, क्लियर है ना सभी को। तो बेसिस काउंट कर सकते हैं, जो हमारे पास p टू पावर k क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड, p टू पावर k तो होता है ना, तो कार्डिनलिटी यहाँ पर क्या है फील्ड की 3, n क्या होता है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस,
तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन अब क्या है 3, पहले 1 थी, ठीक है ना। हाँ, पावर को या फिर आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, जैसे आर ओवर आर क्या लिखा है, इसकी डायमेंशन क्या है 1 है ना। अब सी ओवर आर हो तब क्या हो जाएगी, डायमेंशन 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। हम्म, किसको, सी ओवर आर को, नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस कितनी होंगी इसी में। नंबर ऑफ, हाँ, ऑर्डर्ड बेसिस दैट इज इक्वल टू आएंगी 11 2 3 2, राइट। दैट इज इक्वल टू 26 24 एंड 18 आ जाएगी ना। तो इस तरह से नंबर ऑफ बेसिस बता सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आया हुआ है आपका। एक आया था इसी में क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलआई सेट्स पर डिपेंडेंट था, बट वो शायद नेट का क्वेश्चन है, नेट का ही है कि जैम जैम का है, अभी कंफर्म मुझे क्वेश्चन याद नहीं है एग्जैक्टली, बट क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद है किसी कोई डाउट। ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेट सम matrices M4 means of 4 cross 4 real matrices, right, be the vector space of 4 cross 4 real matrix over R. Let some W in which all Aij's belongs to M4R means all real matrices. Now condition that summation of all Aij must be 0 whenever I plus j that is equal to k, and for some values of k 2 3 4 5 6 7 8, what is dimension of W? डायमेंशन ऑफ W क्या, ये क्वेश्चन आज शायद आपने सॉल्व किया हो, PYQ है। बता सकते हैं इसकी डायमेंशन। हम्म, एक बार रिपीट करना मुझसे। हम्म, ठीक है, ये सब जीरो हो गए,
A220 होगा, A330 होगा, आपने बोला A440 होगा, और नीच डायगोनल एंट्री 0 हो जाएंगे, यही बोला ना आपने। बट यहाँ पर ऐसे तो कंडीशन नहीं दिया गया है कि डायगोनल एंट्री 0 हो जाएंगे। कंडीशन एक बार फिर से पढ़िए। हाँ, बट बार समीशन लगा हुआ, यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया है कि ए आई जे इज 0 वेन एवर आई प्लस जे इज इक्वल टू के, ये नहीं है। नहीं समझ आया? किसी और को समझ आया है यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या है एग्जैक्टली? क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स किस टाइप की होगी? फर्स्ट हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स होगी, A11, A21, A31, A41, A12, A22, A32, A42, A13, 23, 33 and 43, and A14, A24, A34, A44, ये तो मैट्रिक्स होगी। अब आप बताइए इसमें जो कंडीशन दी है उसके बेस पे क्या करें। यहाँ पर देखिएगा, इफ k इज इक्वल टू 2 है तो ये क्या अप्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज दैट A110, राइट? ये तो ठीक है, 0 हो जाएगा, कोई इशू नहीं। बट इफ k इज इक्वल टू 3, this implies that A12 plus A21 is 0, right? If k is equal to 4, then what happen? If k is equal to 4, A31, हाँ A22 plus A13 0 होगा ना? तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं ये 0 होगा, इनका सम 0 होगा, इसके बाद इनका सम 0 होगा, साथ में ये 13 भी आएगा, ये ठीक है। इसके बाद ये 0 होगा, इसका सम 0 होगा, इनका सम 0 होगा, एंड इसका सम 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा, यही तो है ना? तो डायगोनल तो 0 नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना? इफ k is equal to 5, this implies that A41, A32, A23, A14, that is equal to 0। 6 के लिए A42 या 24, जो भी लिखना चाहें, ये 0 होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि 0 कैसे हो रहा है? जो कंडीशन दी है सही है ना? आप बता सकते हैं क्या आप डायमेंशन?
देखिएगा डायमेंशन ऐसे भी बता सकते हैं, यहाँ पर और भी रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहले ए मैट्रिक्स है, ए के पास है, क्या कह रहे हैं, नो 11 गलत। यहाँ पर देखिएगा ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए, टोटल एलिमेंट्स 16 एंड नंबर ऑफ कंस्टेंट्स, वी हैव नंबर ऑफ कंस्टेंट्स, कितनी इक्वेशंस गिवन है, कंडीशंस, then we subtract from that, 9 आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर 7 कांस्टेंट्स हैं तो यानी कि 7 ही तो डिपेंडेंट होंगे ना। वो आप कोई भी लेना चाहें, k इक्वल टू 5 में 4 है हमारे पास वेरिएबल्स, तो इसमें से कोई एक ही तो इंडिपेंडेंट हो, सॉरी डिपेंडेंट होगा ना, ऐसा तो नहीं दो डिपेंडेंट हो जाएंगे। एक इक्वेशन के लिए एक ही डिपेंडेंट होगा, वो आप ए 4 1 ले, ए 3 2 ले, 2 3 ले, 1 3 4 ले, कोई एक ही होगा डिपेंडेंट। एक साथ दो डिपेंडेंट हो सकते हैं क्या, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास 7 डिपेंडेंट हो गए, टोटल हमारे पास 16 है, तो 16 माइनस 9 डायमेंशन क्या आ जाएगी, डायमेंशन, सॉरी 16 माइनस 7 दैट इज 9। या फिर आप इसको सॉल्व करके ए में पुट करिए, इसके बाद चेक करिए नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। क्लियर है, इसमें किसी कोई डाउट हो तो बताइए। नेक्स्ट, हाँ कर सकते, नंबर ऑफ टोटल, नंबर ऑफ टोटल कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जिनको हम चूज कर सकते हैं, या फ्री वेरिएबल्स, और माइनस नंबर ऑफ टोटल कांस्टेंट्स, ठीक है ना। यदि मैं एक वेक्टर स्पेस डिफाइन करूं, कलेक्शन ऑफ ऑल ij of n cross n such that aij plus aji is equal to 0 ओवर सम फील्ड r मान लेते हैं, बताइए डायमेंशन, देन डायमेंशन ऑफ v, collection of all n cross n matrices, and also one more condition, that is all aij are real, right, बता सकते हैं इसकी डायमेंशन। किसी का आंसर n स्क्वायर माइनस 1 तो नहीं आ रहा है, क्या बोले, n माइनस, ये बोल रहे हैं ना आप,
किसी का कोई और आंसर? n इंटू एन माइनस वन बाई टू। एक तो ये आंसर आया है, ये किसने दिया? रोहित। एंड ये आंसर किसका है? ये आंसर किसने दिया है? एन माइनस वन बाई टू। इनमें से कोई करेक्ट है या कोई अदर आंसर किसी का है? इनमें से कोई है या किसी का ऐसा तो नहीं है कि एन स्क्वायर माइनस वन हो आंसर? सेकंड वाला सही है, ओके, ये सही है, ओके। तो दो लोग इस पे एग्री है। ये क्या है? वेक्टर स्पेस कैसा वेक्टर स्पेस है? कलेक्शन ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास किस टाइप की मैट्रिसेस होंगी? यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स होगी ए, यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट तो डायगोनल एंट्रीज जीरो होंगी ना, A12 एंड सो ऑन अप टू A1n। यहाँ पर ये डिपेंडेंट हो जाएगा A12 से, तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का A12 एंड जीरो एंड सो ऑन A2n। इस तरह से यहाँ पर आएगा, क्या आएगा? माइनस का A1n एंड सो ऑन अप टू जीरो। हाँ बोलिए। A n1 नहीं, A n1 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? यहाँ पर क्या है? A1n प्लस A n1 इज इक्वल टू जीरो होगी ना कंडीशन। क्लियर है ना? तो माइनस का A1n लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स तो सब डिपेंडेंट है, उसको कोई चॉइस नहीं है, तो अब चॉइस क्या होगी? यहाँ पर डायगोनल पे एंट्रीज क्या है? जीरो है। तो यहाँ पर डायमेंशन क्या होगी? देखिएगा, उसके ऊपर एलिमेंट्स कितने हैं? n-1। उसके बाद कितने होंगे एलिमेंट्स? n-2। फिर n-3 एलिमेंट्स होंगे अबव डायगोनल्स एंड सो ऑन अप टू लास्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? एक आएगा। तो ये क्या लिखा है? समेशन ऑफ n-1 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? n-1 बाई टू लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ V इज अ वेक्टर स्पेस। अब यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू आ जाए, इन जनरल ये हमारे पास आ गया आंसर। सिमिलरली collection of all n cross n matrices such that aij minus aji is equal to 0 and trace of a, जो भी मैट्रिसेस होंगी, दैट इज इक्वल टू 0। अब बताइए क्या आएगा आंसर? and aij comes from real number over r, then dimension of b। -1 सेपरेट है ना? और किसी का कोई आंसर है? आपका आंसर आया डायमेंशन ऑफ बी दैट इज इक्वल टू n-1 बोल रहे हैं, n+1 बाई टू -1। किसी का कोई और आंसर है? या सभी का यही आ रहा है?
ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक का क्या होता है, nn प्लस 1/2, साथ में एक कंडीशन दी है ट्रेस जीरो, यानी कि सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज इज जीरो। यदि ये जो ट्रेस की कंडीशन है, ये जो ऊपर हमारे पास लिखी हुई है मैट्रिसेस, इसमें दी गई वो कंडीशन, तो कोई चेंज आएगा क्या डायमेंशन में? क्योंकि वो तो ऑलवेज जीरो होगा ना। नेक्स्ट, S and T any subset of vector space V over F such that L of S is equal to V, second T is Li। दो कंडीशन दी गई है, देन ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा कि S लेस देन T लेस देन इज इक्वल टू एंड B S greater than T greater than equal to N C N less than equal to T less than equal to S। एक मिनट, ये तो कंडीशन सेम ही हो गई, लेस देन इज इक्वल टू N लेस देन इज इक्वल टू S। नेक्स्ट, T is less than is equal to N less than is equal to S। बताइए, S and T any subset of V N over F and S is span whole V and T is Li, which of the following option is true? रोहित, रोहित आपका आंसर किसका है? उजल, ऑप्शन डी। ओके, और किसी का कोई आंसर? और किसी का कोई आंसर अभी तक नहीं आया? आया किसी का? नहीं आया आंसर किसी का?
देखिए यहाँ पर एस है जो हमारे पास, एस की कार्डिनलिटी क्या पॉसिबल होगी? एस क्या है? स्पैन कर रहा वी को, एस वी को स्पैन कर रहा है, दैट मीन्स एस की जो हमारे पास कार्डिनलिटी है वो या तो एन होगी या उससे ग्रेटर होगी ना, क्योंकि हमारे पास वी एन एफ है ना। डायमेंशन क्या है वी की? डायमेंशन ऑफ वी एन है। एस यदि स्पैन कर रहा है, इफ एल ऑफ एस इज इक्वल टू वी, तो क्या होगा? कार्डिनलिटी ऑफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन। नेक्स्ट, टी इज एल आई, टी यदि एल आई है तो टी की कार्डिनलिटी एन से बड़ी हो गई, यानी कि लार्ज देन एन हो गई, तो क्या हो जाएगा? एल डी हो जाएगा। तो टी की कार्डिनलिटी डज नॉट एक्सीड एन और नॉट ग्रेटर देन एन। तो इन दोनों को कंबाइन करके कौन सा रिजल्ट आएगा? यानी कि क्या आएगा बताइए? कार्डिनलिटी ऑफ टी मस्ट बी लेस देन एन एंड एन इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ एस, तो डी ट्रू हो जाएगा ना। यदि एस स्पैन कर रहा है, ए ऑप्शन देखिएगा, एस स्पैन कर रहा है और एस कार्डिनलिटी में टी से लेस है, तो टी भी स्पैन कर देगा। और अगर एस एल आई हुआ तो टी एल एल आई रहेगा क्या? नेसेसरी है क्या? नहीं है ना। तीनों को यहाँ पर एन होना पड़ेगा, एग्जैक्टली होना पड़ेगा ए ऑप्शन में। एक ही ऑप्शन ए ऑप्शन, मतलब कि यहाँ पर लेस देन की कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती ना, क्योंकि टी एन से बड़ा नहीं हो सकता, मींस मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स एन, और एस भी उसके इक्वल ही होना पड़ेगा यदि वो स्पेन कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ट्रू होगा। किसी को कोई डाउट है? बताइए। नहीं। डायमेंशन का और क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस है V such that collection of all aij 4 cross 4 such that aji is equal to, very nice, aij, and aij comes from C over F over R। डायमेंशन क्या आएगी? 4 क्रॉस 4 की मैट्रिसेस हैं और ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे है, और ए आई जे बिलोंग्स टू सी एंड फील्ड है वो हमारे पास आर। ऑप्शन 12, 16, 20, 32। ऑप्शन सी। किसी और का कोई आंसर?
सी होगा। ओके, करेक्ट है। इसको एक्सप्लेन करने की नीड है, कोई बताइए, किसी को ना आ रहा हो समझ में। V is equal to collection of all m cross n matrices such that Aij comes from C complex number over C। फील्ड भी हमारे पास क्या है, C है, ठीक है ना। ना यहाँ पर कंडीशन और दी है साथ में कि समेशन Aik that is equal to 0 whenever I is equal to 1 to m for all k is equal to 1 to n। व्हाट इज डायमेंशन, ये कंडीशन इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। ऑप्शन mn mn minus m mn minus n, none of the above, none of these। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा। और किसी का कोई आ रहा है? सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कैसे आया, कोई एक्सप्लेन करेगा? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? बोलिए बोलिए, आप जो भी आपने किया है जिस तरह से, वो बता दीजिए। ओरली बता दीजिए जो भी आपने किया है। वॉइस नहीं आ रहा, हाँ बोलिए। हाँ ओके। तो यहाँ पर आपने बोला है कि एवरी रो का सम 0 आया, ये बोले हैं, एवरी कॉलम का सम 0 आया। बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा डायमेंशन, m माइनस वन इंटू एन, दैट इज m n माइनस n। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, इसकी डायमेंशन में किसी को कोई डाउट है? यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है, एक कोई मैट्रिक्स होगी m क्रॉस n की, तो यहाँ पर क्या कंडीशन दी गई है बताइए कि ए आई के इज इक्वल टू 0। फर्स्ट लेते हैं k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू मीन्स 1, क्या हुआ कि फर्स्ट कॉलम होगा ना, फर्स्ट कॉलम का सम क्या है, 0। ऐसे सभी कॉलम का सम 0 है ना, सभी कॉलम का सम 0 है। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि सभी कॉलम का सम 0 है तो मैं मानता हूँ जो लास्ट हमारे पास रो है, इसके एलिमेंट्स को कंसीडर कर लेते हैं डिपेंडेंट। तो ये डिपेंडेंट होगा, ये डिपेंडेंट होगा, ये डिपेंडेंट होगा,
सभी कॉन्स्टेंट्स के बेस पर। दैट मीन्स लास्ट वाली रो है वो क्या है, डिपेंडेंट होगी ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज, इंडिपेंडेंट रोज कितनी है, इंडिपेंडेंट रोज कितनी होगी, m-1। और कॉलम तो सभी इंडिपेंडेंट है, तो इंटू n, तो क्या आ जाएगा, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है। जो 20 आया है ओको, यहाँ पर ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होती है, n+1/2। तो इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू 4 है, तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये 10 आएगा ना, 10 आएगा। अभी ओवर सी था, यदि सी है वो ओवर आर हो जाता है, तो सभी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको आर को किस, आर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अल्फा आई प्लस आयोटा बीटा आई। तो यहाँ पर इस तरह के हमारे पास 10 एलिमेंट्स मिलेंगे, बट उन सभी 10 के लिए दो दो चॉइसेस होंगी। तो कितना आ जाएगा डायमेंशन, क्लियर है। और किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट, v is equal to collection of all those polynomials up to n degree a naught a1x and so on a n x to power n such that ai comes from c complex numbers and also some condition p of minus x is equal to p of x. What is dimension of v? When field is also c. Option A, n+1/2. B, n/2 plus 1. C, both A and B. D, none of these. बताइए। ऑप्शन डी, डी है तो कोई ना कोई आपका आंसर होगा, बता सकते हैं। ओके, but here some condition given p minus of x that is equal to p of x, that means collection of all even polynomials, right? Yes, yes, over c, same field, over c. Why you write in iota form? Why you writing in iota form? Because of if ai comes from c and field also c, so no need to expand in form of ai plus ib or a plus iota b. This is not requirement. If you expand
no problem, but not required. If you have field R, then you expand that, because if you have choices from also C, and here AI is comes from also C and over C, so it's totally depend on X, dependency on X dimension. कोई बताएगा यहाँ पर आंसर? यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है? P of minus x that is equal to P of x. That means collection of all even polynomials. तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर a1, a3 एंड सो ऑन a2n माइनस वन, ये सब जीरो हो जाएंगे ना, इनको जीरो होना होगा, जो भी ऑड ये जीरो होंगे ना, तभी तो इवन बनेगी। तो हमारे पास जो यहाँ पर पॉलिनोमियल एक्चुअल में जो रिमेनिंग है क्या है, ए नॉट प्लस a2 एक्स स्क्वायर a4 x टू पावर 4 एंड सो ऑन, जो भी आएगा आगे आई डोंट नो। जो n है, अब यहाँ पर भी केसेस बनेंगे कि n इवन होगा या ऑड होगा, यही होगा ना? या तो देखिएगा यहाँ पर n ऑड होगा या इवन होगा, दो केस बनेंगे। बट यहाँ पर जो भी आएगा 2n टाइप का आएगा या 2k, इसको k कंसीडर कर लेते हैं, नॉट n, राइट? x टू पावर 2k, तो ये हमारे पास इस तरह की पॉलिनोमियल आएगी। तो आप बता सकते हैं क्या? यदि n इवन हुआ, ठीक है ना, n इवन हुआ तो हमारे पास डायमेंशन जो होगी दैट इज n/2 प्लस एक कांस्टेंट टर्म आएगा ना। यदि ऑड हुआ तो आएगा n+1/2, तो दोनों केसेस ट्रू होंगे ना। बट यहाँ पर n ऑड है इवन है, पॉसिबल है ना ए और बी। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? यहाँ किसी को कोई डाउट है? नहीं, ये सेपरेटली जीरो होंगे, इंडिविजुअली इंडिविजुअली सभी जीरो होंगे। a1 भी जीरो होगा, a3 भी जीरो होगा, a2 के माइनस भी जीरो होगा, जो भी ऑड पावर्स वाले टर्म होंगे ना वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहीं तक रखें क्लास या आगे और? ठीक है, यहीं तक। आज क्लास में किसी को कोई डाउट?